Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. So symmetry operation. This is our last article of this particular chapter, crystal structure. इनामदार के आईडी से जो आए हैं साहब वो अपना कैमरा ऑफ कर दें प्लीज. इनामदार. Yeah, thank you. So yesterday I have told you that so far we have seen the crystal structure, all the terms and definition of the crystal structure associated with them, that is a coordination number, packing fraction, unit cell, Bravais lattice, all these things we have seen. Now the last article of this particular chapter that we are going to see here today is the symmetry operation. We know that in case of crystal or in case of crystal lattice, किसको बोलते हैं अपन क्रिस्टल या क्रिस्टल लेटाइस, जिसके अंदर एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की एक पीरियोडिक और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है. Am I correct? Tanaza, Madhya, Tehrin, all of you. Are you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So that means crystal is nothing but regular, periodic, ordered arrangement of atom. It is called as crystal. And in crystal, there is a crystal unit cell is there. All combination of this unit cell give rise to the crystal structure. Then there are the cell parameters ABC. Then we are knowing the angles are there. A, alpha, beta, gamma. Depending on that one, there are the 7 different crystal structure: cubic, tetragonal, hexagonal, orthombic. All this one we have seen so far. लेकिन जब क्रिस्टल के अंदर अरेंजमेंट की एटम्स ऑर्डर है, ठीक है, और ये क्रिस्टल के ऊपर कोई एक ऐसा ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेशन यानी कि अमल, यानी कि उल्टाना सीधा करना. ऑपरेशन बोल तो आप सर्जरी का ऑपरेशन मत समझिए. ऑपरेशन मींस टू रोटेट, टू ट्रांसलेट, टू पास इन दिस वे, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन. So symmetry operation is that operation that can be performed either physically or imaginary on the crystal that result in the no change in the appearance of the object. It is called as symmetry operation. यानी कि ऐसा ऑपरेशन जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पर क्योंकि हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टल के साथ किया जाए कि वो ऑपरेशन करने के बाद भी क्रिस्टल के ज्योमेट्री के ऊपर किसी किस्म का चेंज वाक़ई ना हो. उस ऑपरेशन को क्या नाम से पुकारेंगे आप? सिमेट्री ऑपरेशन. समझ में आ रही क्या बात आपके? यस नो बोलते रहिएगा बीच में. Yes, sir. That the symmetry operation is an internal, that is, it is an ordered geometrical arrangement of atoms or molecules in the crystal lattice. It is called as the symmetry operation. How many symmetry operations are there? There are nearly 4 symmetry operations are there: translation symmetry, rotation symmetry, reflection symmetry, and inversion symmetry. Or you may call it translation, rotation, reflection, and inversion. यानी कि इतने ऑपरेशंस हैं जो क्रिस्टल के साथ किए जाएं तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर या उसकी ज्योमेट्री या उसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो कैसा रहता? ये ऑपरेशन होने के बाद भी बदलता नहीं. आर यू गेटिंग? ऑल ऑफ यू प्लीज बीच में यस नो बोलते रहिए. Yes, sir. Yes, sir. So now first translation. किसको बोलेंगे ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशनल सिमेट्री? ट्रांसलेशनल सिमेट्री किसको बोलेंगे? तो ट्रांसलेशनल सिमेट्री इज व्हेन समथिंग अंडरगो, समथिंग बोलते हैं क्रिस्टल, अंडरगो ए मूवमेंट और ए शिफ्ट और ए स्लाइड in specified direction through a specified distance without any rotation or reflection, and distances between the point within the figures will not change. It is called as translation. Translation कब किसको बोलेंगे हम? ट्रांसलेशन हुआ जब कोई चीज, यानी कि जब क्रिस्टल एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा या स्लाइड होगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन में कुछ फासले को जाएगा, और ये जाने के बाद, पहले समझो पहले जाने से पहले वो ए मुकाम पर था, जाने के बाद बी मुकाम पर आया, ए और बी में जाने, ए से बी तक जाने के दौरान उसके
ज्योमेट्री में या उसके एटम्स की तब्दीली में या उसकी ज्योमेट्री में या उसके शेप में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी, तो उस तरह का ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन कहलाएगा? क्योंकि हम सिमेट्री ऑपरेशन किसके अंदर देख रहे हैं? हमारा चल रहा क्या चैप्टर गुज़िश्ता 7, 8, 10, 12, 15 पीरियड से किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? अनम्यूट करके बोलते रहिएगा। क्रिस्टलैटिक। क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं हम। Crystallography. हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्रिस्टल कैन अंडरगो द ट्रांसलेशनल सिमेट्री। दैट मींस क्रिस्टल कैन मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और it undergone a moment, or it get shift, or it get slide. But when this operation is carried out on the crystal, there is a no change in the geometry of the crystal. That means the atoms of that crystal does not changes their position. Therefore that operation, कौन सा ऑपरेशन? एक जगह से दूसरी जगह जाना या ट्रांसलेट होना या स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जाना, वो डायरेक्ट वो ऑपरेशन क्या कहलाता? ट्रांसलेशन। अब इससे सिमेट्री रहती बोल के वो पूरा ऑपरेशन क्या नाम से पुकारा जा रहा? ट्रांसलेशनल Symmetry. अभी किसके ऊपर अमल हो रहा है? ये क्रिस्टल के ऊपर। तो वी कैन से दैट द क्रिस्टल कैन हैव द ट्रांसलेशनल symmetry. That means when the crystal is undergone a moment or a shift or slide or in a specified direction through a specified distance without any rotation, और यानी कि आप उसका रोटेशन रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे, क्रिस्टल को ऐसा ऐसा रोटेट नहीं कर रहे, जैसा कल बताया था ना रोटेशन की 2-3 किस्में, बल्कि आप क्या कर रहे हैं? उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तब भी जो है तो उसके ज्योमेट्री में फर्क नहीं पड़ रहा। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल ट्रांसलेशनल सिमेट्री से गुजरता है। समझ में आ रही बात? The size and और क्या नहीं बदलता उसका? This angle within the figure will not change. Size and shape of the figure will not change. The only thing that changes is location. Is it may be moved right or left or up or down. यानी ट्रांसलेशन में होता क्या? उसके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह नहीं बदलते, उसके एंगल्स उसके शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जो क्रिस्टल प्लेन्स है उनके एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली फर्क क्या पड़ता कि उसका लोकेशन बदलता, उन्हें कहा जाता बट ट्रांसलेशन करो बड़ा ना, हलाओ उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, तो क्या होगा? कभी राइट में जाएगा, कभी लेफ्ट में जाएगा, कभी आप ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। समझ में आ रही क्या बात मैं क्या कह रहा हूँ? आप बोलते रहिए ना बेटा प्लीज। यस सर। Yes, sir. थोड़ा इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बेटा। अगर आप बिल्कुल इस तरह से Yes, sir. कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो खाली क्या चेंज होगा ट्रांसलेशन में? पोजीशन। बाकी पूरे एंगल, शेप, साइज, ज्योमेट्री कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। तो उस ऑपरेशन को हम क्या नाम से पुकारेंगे? ट्रांसलेशन Symmetry. देखिए इस तरह Symmetry. दिख रहा है क्या? ये एक बॉडी है, ये एक ऑपरेटर है, ये एक जो है तो क्या है? क्या करे? यहाँ से अपन यहाँ से उसको यहाँ तक लाए या यहाँ तक लाए, क्या बदला? Location. खाली लोकेशन बदला, बाकी इसके किसी चीज में चेंज आया क्या? अब No. देखो उतना उतना दिख रहा है। लिहाजा No, sir. तो लिहाजा ये कौन सा ऑपरेशन या कौन सी सिमेट्री कहलाई? ट्रांसलेशनल Translation symmetry. ठीक है, चलो आगे। Yes, sir. चलिए Yes, नेक्स्ट sir. रोटेशनल सिमेट्री। आपको नाम पे से समझ में आता। फर्ज कीजिए कि क्रिस्टल है, पोजीशन इस तरह इसको रोटेट किए, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, पोजीशन आफ्टर 90 डिग्री टर्न, यानी कि ए शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री व्हेन इट लुक्स द सेम आफ्टर रोटेशन, यानी कि क्रिस्टल को रोटेट करने के बाद भी शेप अगर सेम दिखता होगा तो वो सिमेट्री, वो ऑपरेशन, वो अमल क्या कहलाएगा? रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री। Rotational symmetry. समझ में आ रही बात? आसान है ये तो, आप इससे पहले भी देखिए मैंने दो बॉडीज, दो शेप आपके सामने रखे, दिख रहा है कि ऊपर वाला Yes, sir. कुछ फर्क पड़ रहा है क्या उसके शेप में या उसके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में? जो फर्क पड़ता क्या? बराबर कार्नर को एटम रहेंगे तो रहेंगे, बॉडी जैसी की वैसी रहेंगी। तो इवन No, sir. when we rotate the crystal or when we rotate the body through some angles from 90, 180, 70, देखिए अलग अलग एंगल पे अपन इसको रोटेट कर रहे, लेकिन तब भी आप ये देख रहे कि टोटल पोजीशन ऑफ द एटम्स और आयंस व्हिच इज फिक्स्ड टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन सेम।
लिहाजा क्रिस्टल के अंदर कौन सी सिमेट्री हो सकती, रोटेशनल सिमेट्री भी हो सकती, या दूसरे अल्फाज में अगर बोलने का तो क्रिस्टल कैन पोजेस रोटेशनल सिमेट्री। Symmetry. Same thing is happen in this case also, A B C D। क्या बत कुछ इसको ऐसा पलटा है 90 डिग्री से करे तो क्या होगा, खाली ऐसा D A B, मगर पोजीशन एक जैसी दिखेंगी। आप कुछ भी नाम दो, हालांकि ए का बी को, ए का डी को, बी का सी को आया हुआ दिख रहा, लेकिन ओवरऑल इसकी ज्योमेट्री बदल रही क्या। देखिए नीचे की बॉडी ए बी सी डी ये क्या है, No, sir. देखिए ये यहाँ 90 से करे इतना दिख रहा, फिर उसको 80 से करे तो इतना दिख रहा, फिर 270 से करे, 360 से करे तो फिर वापस आ गया अपनी पोजीशन पे, बराबर है क्या, पूरा गोल मार के वापस आ गया। तो लिहाजा क्रिस्टल के अंदर रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है। कितने हो गए सिमेट्री ऑपरेशन, कितने हैं, 4. 4। कौन कौन से, ट्रांसलेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, Rotational symmetry. रिफ्लेक्शन, 2 हो गए। रोटेशनल सिमेट्री के और देखो शेप, अलग अलग शेप, पैरेललोग्राम है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, कितने वक्त इसको फिरा सकते हो तो सेम दिखेगा। देखो ये आपके लिए एक तख्ता या एक चीज आपके सामने रखे, रेगुलर पॉलीगॉन विथ यंग स्लाइड्स, कितने उसको जो है तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितने वक्त उसको फिरा सकते हैं, कितना उसका हो सकता है, रोम्बस है, सर्कल है, सर्कल को तो कितने मरतबा भी फिराओ, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने भी रहेंगी, क्योंकि उसको सेंटर है ना। तो ऑल दीज आर द फॉर योर इंफॉर्मेशन। रिफ्लेक्शन, मैंने यहाँ क्रिस्टल नहीं लिया, क्रिस्टल को समझने में दिक्कत आती थी बोल के नीचे लिया बाद में, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यहाँ से बीचों बीच से अगर एक लाइन कर दे तो ऐसा लगता है कि ये बिल का ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है, यानी कि इसका अक्स दिखता है यहाँ पे पूरा। दैट मींस सिमेट्री हैविंग ओनली वन साइड दैट एग्जैक्टली द मिरर, यानी कि बिल्कुल उसका मिरर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है ये उसका अक्स, इसको क्या बोलते हैं आप, रिफ्लेक्शन। Reflection. Reflection. वैसे जो है तो क्या होगा, अगर क्रिस्टल को अगर काट दिए बीच में से थोड़ी देर के लिए, या एक इमेजिनरी लाइन, अपन ने पहले क्या बोले सिमेट्री किसको बोलते, बोले फिजिकली चेंज करो या नहीं तो इमेजिनरी चेंज करो। आप बोलिए क्रिस्टल को कहाँ काटो, कहाँ ऑब्जेक्ट और कहाँ इमेज दिखाओ, तो वो नहीं बोल रहे हम। आपको क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई क्रिस्टल है, मिसाल के तौर पर ये क्रिस्टल है, स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं अपन क्रिस्टल में कि भाई यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक एटम रहेगा, यहाँ एक एटम रहेगा, यहाँ एक एटम रहेगा, बराबर है क्या। मिसाल के तौर पर अगर इसके बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करे तो बिल्कुल बराबर इधर एक होगा कि नहीं, या अगर थोड़ी देर के लिए 3 डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल को अगर बीचों बीच से लाइन ड्रॉ करे तो उत्ते जिधर जितने एटम जितने मॉलिक्यूल दिखेंगे वैसे इधर लेफ्ट साइड में उतने एटम उतने मॉलिक्यूल दिखेंगे क्या। तो इमेज Yes, sir. यहाँ पे कौन सा अमल कर रहे हैं हम, इमेजिनरी Yes, कर, sir. इमेजिनरी कर रहे, इमेजिनरी ऐसा घुमा रहे नहीं। रिफ्लेक्शन में क्या करे, रोटेशन में क्या करे थे, ऐसा घुमाए थे, ट्रांसलेशन में उठा के रखे थे। यहाँ रिफ्लेक्शन में क्या कर रहे हैं अपन, क्रिस्टल को इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ कर रहे, एक प्लेन ड्रॉ कर रहे, तो उसके बाद हम देख रहे कि इसको भी अगर हमने कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं कि उनका एग्जैक्ट जो है तो आधे आधे दिखते, मतलब इधर ऑब्जेक्ट और इधर इमेज नजर आती। लिहाजा क्रिस्टल कौन से अमल से गुजर सकता, कौन सी सिमेट्री रखता, प्लीज। Reflection symmetry. Reflection symmetry. समझ में आ गई बात आपके। Yes, sir. आपको लाइन ड्रॉ करके Yes, sir. ये देखिए अलग, ये मैंने अलग अलग क्रिस्टल के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। देखिए ये लाइन सिमेट्री है, एन ऑब्जेक्ट में है मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अलग अलग भी सिमेट्री हो सकती, अब क्योंकि अब ज्यादा डिटेल में अपने को यहाँ पढ़ना नहीं है, इसलिए खाली हम आपको बता रहे क्रिस्टल के ताल्लुक। देखिए रिफ्लेक्शन होता कैसा, सिमेट्री अबाउट वन एक्सिस, नंबर से भी लिए ये सिमेट्री अबाउट, यहाँ पे एक ही एक्सिस का है, आधा आधा, यहाँ सिमेट्री 2 एक्सिस में, देखो एक्स एक्सिस में भी है और Y axis में. एक्सिस में भी है। यहाँ पे 3 एक्सिस में है। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर रहता क्या ऐसा भी, देख के आए क्या अपन ने, यहाँ पे 4 एक्सिस में है, Yes, sir. यहाँ पे 5 एक्सिस में है क्या सिमेट्री दिखती क्या 5 एक्सिस में भी। कहीं इधर किधर से लाइन ड्रॉ करो, इधर से ड्रॉ करे तो Yes, sir. इधर से ड्रॉ करे तो 1 2 इधर से, तो दैट मींस सिमेट्री कैन बी सीन
in reflection also. Last one, inversion. क्या रहेगा इन्वर्शन में कि पूरा अगर उसको इन्वर्ट करे एक एक्सिस के अतराफ तो उन्हें सेम दिखना, यानी कि उसके मालिक देखो ये सेंटर ऑफ इन्वर्शन है। यहां से अगर अपन ऐसा फिरा दी, ये देखो फिगर दिख रही है, आप देखते रहिए अनम्यूट करके। ये आइटम्स की पोजीशन है, समझो 1 2 3 4 5 6, यहां से फिरा दिए, उसको इन्वर्ट कर दिए, क्या हुआ? ज्योमेट्री बदली? नो सर। एटम्स की जगह नो बदली? सर, क्लोरीन का समझो No. मिसाल तो भाई सोडियम है, ये क्लोरीन है, तो सोडियम की जगह क्लोरीन, क्लोरीन की जगह सोडियम आया, ज्योमेट्री बदली क्या? क्रिस्टल में तो हमको ज्योमेट्री नहीं बदलना, बदली क्या इन्वर्शन के बाद ज्योमेट्री? नहीं, लिहाजा इसको क्या बोलेंगे? सेंटर के अतराफ फिर ऐसा सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इन्वर्शन इन सेंटर ऑफ सिमेट्री। पूरे को अगर एक साथ लिए हम, ये देखो ये ट्रांसलेशन, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये रिफ्लेक्शन, ये रोटेशन और ये इन्वर्शन। Translation symmetry along a horizontal line, reflection symmetry about a vertical line, rotational symmetry at 60 degree। खाली आपके इंफॉर्मेशन के लिए रखे हैं। रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे अपन? लेटाइस is said to possess reflection symmetry about a plane or about a line in 2 dimension if it is left unchanged after being reflected in a plane। यानी कि कोई प्लेन या कोई लाइन के अतराफ रिफ्लेक्शन के बाद अगर उसकी ज्योमेट्री सेम रहती है, वो अनचेंज रहता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्शन। बराबर है? ये इन्वर्शन, a crystal structure possess an inversion symmetry if for each point located at R relative to the lattice point there exists an identical point at minus R। Inversion is applicable in 3 dimensional lattices only। याद रखिए, ट्रांसलेशन, रोटेशन ये तो हो जाएंगे 2 डायमेंशनल में, लेकिन इन्वर्शन खाली कौन से ज्योमेट्री के जो है तो इसमें नजर आएगा क्रिस्टल में? ओनली इन 3 dimensional। 3 डायमेंशन। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इन्वर्शन। वी शैल स्टॉप हियर टुडे। ये ज्यादा मैंने इस वास्ते तेजी से लिया कि ये अपने सिलेबस में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं था, खाली आपको ये बताना मकसद था कि इन्वर्शन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन ये सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, यानी कि ये ऐसे ऑपरेशंस हैं जो क्रिस्टल के ऊपर किए जा सकते हैं, और इन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में फर्क क्या होता क्या नहीं होता? फर्क होता? मदिया तनजा, फर्क होता? मुस्तफा, शेख मुस्तफा। हाँ सर। आज पहला पीरियड है, कुछ समझ में आ रही क्या बात? आज आपको बताए हैं, जब ये आखिरी आर्टिकल था, जस्ट रिवीजन था पूरे चैप्टर का। आइंदा से इंशाल्लाह अगले पीरियड से लगाइए, अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है? जी सर। इसका एक चैनल है, इस पे वीडियोस है, आप वीडियो सुन सकते हो। ये लेक्चर जो होता है ना, इसका डायरेक्ट वीडियो हम जो है इसको रिकॉर्ड करते और रिकॉर्ड करके